So theory of equations में सबसे पहला point, I want you to note it, we'll discuss it if required, the fundamental theorem of algebra. I think मैंने तुम लोगों को ये पहले बताया हुआ है. What is fundamental theorem of algebra? No, this is not a new chapter. This is a part of quadratic, extended part of this chapter. Yes, so you have to note down this theorem. Once you have noted it, read it carefully. This is a very basic, very fundamental theorem, which says, look at the first statement. It says that if you have a non-constant single variable polynomial with complex coefficients, that means real or imaginary or whatever coefficients there are, it will have at least one complex root. कहने का मतलब ये है कि भाई तुम्हारे पास कोई भी पॉलिनोमियल हो जो कि कांस्टेंट नहीं है, ऑब्वियसली डिग्री 1 एटलीस्ट होना चाहिए, तो उसकी कम से कम एक रूट तो होगी हाउ आई थिंक इट इज वेरी इंटुइटिव, और ये चीज़ हमने स्टार्टिंग से ही देखी हुई है. क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स आती हैं, क्यूबिक है तो 3 रूट्स आती हैं, डिग्री 5 है तो 5 रूट्स आती हैं. तो अगर स्टेटमेंट ऐसा है कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसकी एटलीस्ट एक रूट होगी, तो बात तो सही है. क्यों भाई? इफ एनीबडी डिसएग्रीज, इफ एनीबडी, you're not able to see, I think font size is proper. Advik, you're not able to see. अब मैं font size से बड़ा करता तो ये स्लाइड के बाहर निकल जाता. Advik, it is blurred. Okay. Okay, I'll share the slide with you. Okay, I'll share the slide with you. You copy there from me. Okay. So this is the first statement. Look at the second statement. For every non-zero single variable degree n polynomial with complex coefficients, counted with multiplicity. Multiplicity means what? Repeated roots. Like in quadratic, a root can be repeated twice, right? Repeated roots. So counted with multiplicity, exactly n complex roots will be there. Not properly visible. How is it possible here? Palash is saying this text is not visible. ऐसा कैसे हो सकता है? I am sharing the same slides, but yes, I think there should be some network issue, Palash. So every non-zero single variable degree n polynomial with complex coefficients has counted with multiplicity exactly n complex roots. Yes, bandwidth is low. तो बताओ भाई, ये स्टेटमेंट एक बार फिर वही हुआ कि हमारे पास अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उस n डिग्री के पॉलिनोमियल की n रूट्स होंगी, है कि नहीं? बताओ. Isn't it? For a n degree polynomial equation will have n roots. How are we saying this? कैसे कह रहे हैं हम ये? I mean, इस बात का लॉजिक क्या है? The first statement, the very first statement. The first statement is कि भाई हर पॉलिनोमियल इक्वेशन की एटलीस्ट एक रूट होगी, राइट? मान लो हम क्यूबिक से स्टार्ट करते हैं, +3. मान लो इस स्टेटमेंट का लॉजिक केवल एक्सप्लेन करने के लिए तुमको, जैसे मान लो मेरे पास एक क्यूबिक है. नाउ एवरीबडी एग्रीज टू द पॉइंट कि भाई किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की एटलीस्ट एक रूट तो होती है, एटलीस्ट एक होती है. सो यू एग्री, ठीक है, इसकी एक रूट होगी. मैं ये नहीं कह रहा हूं उसकी 3 रूट्स होंगे. आई एम नॉट कमिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट, आई एम बैक टू फर्स्ट स्टेटमेंट कि इसकी एटलीस्ट एक रूट तो होगी. You all agree? इस क्यूबिक की कम से कम एक रूट होगी, right? Now, what is factor theorem? Factor theorem says that if alpha is a root, then x minus alpha is a factor. X minus alpha is a factor. Factor of what? Factor of x cube minus x plus 1. So x minus alpha will divide this,
And after dividing by x minus alpha, if you're dividing a cubic by a linear expression, you will get, after division, you will get what? After division, we will get a quadratic. We will get a quadratic. Ax, let's say ax square plus bx plus c equal to 0. Though we know how to find the roots of a quadratic, we know that there will exist two roots. But again, using the same thing, this quadratic must have at least one root. कम से कम एक रूट तो होनी चाहिए इसकी, right? Because of the first statement, कि भाई हर polynomial equation की एक रूट तो होती है. So let's say beta is a root. Repeat the process. If beta is a root, then x minus beta is a factor. X minus beta is a factor. And what will happen after division? Eventually, you will end up having a linear expression, which obviously has a value of x, x equals to gamma. So a cubic will have three roots. We have just proved the fundamental theorem of algebra. The second statement, using the first statement. Yes, so in fact, using factor theorem, we can say that this cubic can be factorized as x minus alpha into x minus beta into x minus gamma. So every n degree polynomial can be factorized in n linear factors. But the catch is, any one of the roots can be imaginary. Any one of the roots can be real. It is not necessary that you are going to get all three real roots, all three imaginary ho nahi sakta khair. So this is the statement of fundamental theorem of algebra. Did you understand the fundamental theorem of algebra? Every n degree polynomial equation will have n roots, nothing else. Fine, okay, okay, very nice. Next, press 3. Press 3, next slide. Now come Vieta's formula. Vieta's formula. Vieta's formula हमने quadratic में already use किए हुए हैं, but ये हमने use नहीं किया अभी तक higher degree polynomial में. हालांकि कुछ लोग जो KVPY के lectures अटेंड कर रहे हैं, उन्होंने ये फॉर्मूले ऑलरेडी देखे हुए हैं. तो विएतास फॉर्मूले क्या है, एक बार तुम ये स्लाइड देख लो. ठीक है, हम स्लाइड पे वापस आते हैं. मैं प्रेस 3. लेट्स गो फॉर ए क्यूबिक. क्यूबिक से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूले आते कैसे हैं. सो लेट्स टेक दिस क्यूबिक वेयर a is obviously not equal to 0. Right? By the statement of fundamental theorem of algebra, this cubic must have three roots. भाई तीन roots तो उसकी होनी चाहिए, alpha, beta और gamma. Again, I'm saying three roots. All three roots can be real, cannot be real, but तीनों values कुछ भी हो, लेकिन होंगी जरूर. Real, imaginary or whatever, but तीन values होंगी. They can be, all three can be equal. Two of them can be equal with cyclicity. तीन roots इसकी होंगी. Now, what is the statement you have read in factor theorem? Factor theorem में हमने क्या पढ़ा था, याद है? Factor theorem का statement था कि भाई अल्फा अगर रूट है, x माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा. बीटा अगर रूट है तो x माइनस बीटा एक फैक्टर होगा. गामा अगर रूट है तो x माइनस गामा एक फैक्टर होगा. That means ax cube plus bx square plus cx plus d equals to, if I apply factor theorem, x minus alpha must be a factor, x minus beta must be a factor, and x minus gamma must be a factor. But this expression is not exactly equal to this expression because of what? Because of this a. Because if you compare coefficients, अगर तुम इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन तीनों लीनियर एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करोगे, you will get x cube. But here we have ax cube. So we should multiply right hand side by a also. a से भी multiply करो. Now these two expressions must be exactly same. That means this is an identity. This is an identity. And you know what is the meaning of an identity? It is always correct. You can substitute any value of x, 1, 2, 3, whatever you want to. It will be always correct.
If it is always correct, then all coefficients must match. Coefficient of x cube तो हमने मैच करा ही दिया, coefficient of x square, coefficient of x, constant term सब मैच करने चाहिए. तो ऐसा करते हैं कि राइट हैंड साइड को चलो मल्टीप्लाई करते हैं. चलो सभी लोग राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ तुम्हें क्या मिलता है. आई वॉन्ट एवरीवन टू मल्टीप्लाई दीज 3 फैक्टर्स. इन तीनों को मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ तुम्हें क्या मिलता है. इट वुड बी अ टीडियस टास्क टू राइट इट ऑन टेक्स्ट. ओके, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं. फर्स्ट टर्म तो एक्स क्यूब मिलेगी, राइट. व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दीज 3? व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? मल्टीप्लाई कर लो एक बार, जिससे तुम्हें अच्छा आइडिया मिल जाए. वेतास फॉर्मूले हम लिख तो लेंगे, रट लेंगे उसको, लेकिन वो आए कहां से हैं उसका देखो बहुत बढ़िया प्रूफ तुम्हें मिल जाएगा. इसके बाद तुम्हें डिग्री 4 हो, डिग्री 5 हो, सिमिलर मेथड से तुम उसको वापस प्रूफ कर सकते हो. यस यस सत्यम, करेक्ट. सो यू मस्ट गेट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. आर यू गेटिंग दिस? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. यस, स्वागतम. The coefficient of x, what will be the coefficient of x? It will be alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha into x. Isn't it? And finally, what about the constant term? Very easy. Minus alpha into minus beta into minus gamma. It will be minus alpha beta gamma. So this is the right hand side. As I said, this is an identity. All coefficients must be same. A is same as ax cube, compare कर लिया. Now look at the coefficient of x square. It is b. यहाँ पर b है ना, तो b किसके इक्वल होना चाहिए भाई? b should be equal to the coefficient of x square here is minus alpha plus beta plus gamma into a. It is minus a into alpha plus beta plus gamma. And this implies what? This implies alpha plus beta plus gamma equals to minus b by a. First formula. वेदास फॉर्मूले में पहला पॉइंट सम ऑफ रूट्स. तो जैसे तुमने सम ऑफ रूट्स निकाला था क्वाड्रेटिक में, वैसे ही क्यूबिक में भी सम ऑफ रूट्स है, वैसे ही बाई क्वाड्रेटिक में भी सम ऑफ रूट्स है, और वैसे किसी भी n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स है. ठीक है, तो मैं इसको S1 करके लिख रहा हूं बिकॉज देन देयर विल बी लॉट ऑफ फॉर्मूलाज. S1 का मतलब हुआ सम ऑफ द रूट्स टेकिंग वन एट ए टाइम. इसका मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा? इट इज माइनस b by a, which is minus coefficient of x square upon coefficient of x cube. The formula looks same, right? जो हमने क्वाड्रेटिक में फॉर्मूला पढ़ा था वही फॉर्मूला तो है ये. All right. What about the other comparison? When you compare coefficient of x, yes, coefficient of x जब तुम कंपेयर करोगे, you will see कि यहां पर है a into alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, और यहां पर है c. तो I will call this S2, और S2 का मतलब है sum of the roots taking 2 at a time. Taking 2 मतलब product of 2. So this will be alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, which is equal to c by a. देख रहे हो, ये माइनस आया और ये प्लस c by a. And finally I can call it S3 or I can call it product of roots. And what is the product of roots? Alpha, beta, gamma. If you compare, ये देखो यहां पर d लिखा हुआ है और यहां पे लिखा हुआ है माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू ए. सो अल्फा बीटा गामा इज
माइनस डी अपॉन ए. दिस इज माइनस डी अपॉन ए. और ये रहे तुम्हारे क्यूबिक के लिए 3 फॉर्मूले. क्वाड्रेटिक में वी हैड 2 formulas, sum of roots, product of roots. Cubic में now we have 3 formulas. Now you can guess if you are getting a biquadratic, you will get 4 formulas. 5 degree polynomial में 5 formulae. Press 3. And if you have n degree polynomial equation, you will get these set of formulas. बताओ है कि नहीं? देखो ना इसमें क्या लिखा हुआ है स्लाइड में. ए एन एक्स एन एक्स पावर एन, ए एन एक्स पावर एन plus an minus 1 x power n minus 1 so on. This is an n degree polynomial, and if roots are alpha 1 alpha 2 alpha 3 and so on to alpha n, s1 means sum of roots. और देखो sum of roots क्या है? माइनस an minus 1 upon an. तो जो भी उसका नेक्स्ट कोएफिशिएंट होगा वो डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n. S2, sum of the roots taking 2 at a time, alpha, beta, beta, gamma, gamma, delta, whatever there are, जितने भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं उन सभी का सम. एंड ध्यान से देखो ये प्लस an माइनस 2 अपॉन an है. ऑल्टरनेटली साइन चेंज हो रहे हैं, माइनस प्लस. इफ यू लुक एट थर्ड फॉर्मूला, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 S3, सिग्मा ऑफ दिस, यानी सम ऑफ रूट्स टेकिंग 3 एट अ टाइम. और उसका आंसर क्या है? माइनस an माइनस 3 डिवाइडेड बाय an एंड सो ऑन. सो दीज आर कॉल्ड विएताज फॉर्मूले. इन फॉर्मूलों की हेल्प से तुम हायर डिग्री पॉलिनोमियल में भी रूट्स के बीच में रिलेशन बना सकते हो. बताओ क्या ये फॉर्मूले समझ में आए सभी को, या किसी को कहीं पे कोई डाउट है? वेंकटेश बोर्ड का तो गया भाई. How you derive S2? Now this is funny yaar. This is so funny of you, Vedant. After deriving everything, you are asking me how we derived S2. Huh? So I'm sorry. हाँ भाई ये mod of 0 है, LOL है, ठीक है. तो इसके बाद बताओ मुझे ये फॉर्मूले सबको पता है क्या? Is it an minus 1 or an minus 1? Yes, recording will be provided. an minus 1, देखो n minus 1 is just the subscript, suffix है वहां पर वो उसका. So it is not an minus 1 नहीं होगा, ठीक है. वेदांत पूछ रहा है भाई S4 क्या होगा? S4 होगा वेदांत प्लस an minus 4 अपॉन an. देखो भाई अगर मैं जेई की बात करूं, अगर तुम्हें क्यूबिक तक के भी फॉर्मूले पता हैं तो उतना काफी है. क्यूबिक तक के भी अगर तुम्हें फॉर्मूले पता है ना तो तुम्हें उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है. द वे यू आर स्ट्रगलिंग, तुम लोगों के स्ट्रगल को देखते हुए मैं तुम्हें बता दूं कि क्वाड्रेटिक से ऊपर तो जेई में आता ही नहीं है. अगर बहुत ज्यादा आया भी तो क्यूबिक हो सकता है, ठीक है. तो परेशान मत हो, क्यूबिक मैंने डिराइव करा दिया और ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन आ रहे हैं. ये चीज ऑब्जर्व करो कि भाई पहला जब हमने S1 निकाला तो माइनस से स्टार्ट हुआ था, जब तुमने S2 निकाला तो प्लस हो गया, जब तुम S3 निकालोगे तो माइनस हो जाएगा, जब तुम S4 निकालोगे तो वापस प्लस हो जाएगा. तो ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन आएंगे, प्लस माइनस, ठीक है. और जो कोएफिशिएंट्स हैं वो एक ऑर्डर में चलेंगे. तो इतनी बात समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए. लिखा हुआ है स्लाइड में, समझ में आ रहा होगा नहीं? So what will be S4? S4 will be plus an minus 4 upon an. अब तुम पूछोगे S5 क्या होगा, फिर कोई पूछेगा S6 क्या होगा. तो we can do this all day just like Captain America, है ना. तो समझो, थोड़ा पैटर्न देखो, पैटर्न देख के समझ में आएगा तुम्हें S5 क्या होगा, S6 क्या होगा, करने की जरूरत नहीं है. तो ये फॉर्मूले सभी नोट कर लिए क्या? ये फॉर्मूले सभी नोट कर चुके हैं?
ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये रहे दो क्वेश्चंस, वेतास फॉर्मूले पर दो क्वेश्चंस हैं। पहला इजी है और दूसरा थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो और देखते हैं भाई कितने लोग ये क्वेश्चंस कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे होना चाहिए, दिस इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज। नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं है, लेकिन पहला क्वेश्चन सभी लोगों को करना चाहिए। वी कांट हियर यू। अब ये क्या हो गया भाई, आवाज नहीं आ रही मेरी? सो लुक एट दिस क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। और देखो मैंने तुम्हें क्यूबिक दी है, मैंने कहा ना कि बहुत ज्यादा हुआ तो क्यूबिक दी जाएगी। अब इसको ध्यान से देखो, इस क्यूबिक में जो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, उसमें लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ये रही हमारी क्यूबिक, और इस क्यूबिक की तीन रूट्स हैं ए, बी और सी। ठीक है, फिर एक दूसरी क्यूबिक दी गई है जो कि है एक्स क्यूब प्लस आर एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस टी इक्वल्स टू 0। और इसकी रूट्स है ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। और अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। इफ यू कैन डायरेक्टली फाइंड द रूट्स, बहुत अच्छी बात है भाई। अगर किसी को डायरेक्टली रूट्स दिखाई दे रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि डायरेक्टली हमको रूट्स दिखाई दे रही है क्या? कैन यू फाइंड द रूट्स ऑफ दैट क्यूबिक? क्या तुम्हें उस क्यूबिक की रूट्स पता है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। हाँ, अगर तुम्हें रूट्स मिल गई तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? उससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। प्रेस 3। सो ये क्वेश्चन है भाई, दिस इज द क्यूबिक, ए बी सी आर द रूट्स, दिस इज द क्यूबिक, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए आर द रूट्स। क्वेश्चन ये है कि बताओ टी की वैल्यू क्या होगी। ये रहे हमारे क्यूबिक के तीन फॉर्मूले जो मैं डिराइव भी कर दिए, तुमने नोट भी कर लिया। अब मुझे बताओ कि अगर मैं वेतास फॉर्मूले पहली इक्वेशन पे अप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? अप्लाई दीज थ्री, टेल मी। वेदांत, अगर तुम बताना चाहो तो बताने की कोशिश करो। What will be sum of roots? A plus B plus C क्या होगा? A plus B plus C माइनस 4 बोल रहा है। वेदांत कहां से आया बे? कौन से प्लेनेट से भाई? क्या कर रहा है यार? हद है यार, तूने हद कर रखी है। सम ऑफ रूट से गलत बता रहा है। सेकेंड, व्हाट विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए? कंपेयर करो इस फॉर्मूले से और सही बताओ। फिर से यस, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज प्लस सी बाई ए प्लस 4 बाई 1 प्लस 4। एंड फाइनली product of roots a b c will be minus d by a, minus of minus 11, it will be 11. yes, चलो भाई, खुशामदीद। इतने लोगों ने जो है पहली बार इतने मुश्किल क्वेश्चन का आंसर सभी ने अच्छा दिया, बहुत बढ़िया। we want to find t. if we want to find t, how t is related with these three roots? How t will be related with these three roots? Come on, product. So a plus b into b plus c into c plus a, product of the roots will be equal to minus d by a minus t.
So if you want to find t, you have to find this product. A plus b, b plus c, and c plus a. Now the algebra required, the level of algebra required to solve this question is of 8th or 7th grade. Using these three, you have to find this. I trust you, तुम लोग कर सकते हो. Let's see. देखते हैं. How to find a plus b, b plus c, c plus a if you have these three? Sadgun's answer is -12. We'll check. I don't remember the answer. मुझे देखना पड़ेगा एक बार. -12 है कि नहीं देखते हैं. Are we going to multiply straight away? इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या श्रेया? What do you think? श्रेया, should we multiply? Because multiply करना it would be very tedious, right? हाँ, but multiply करके आंसर आया अच्छी बात है, but multiply हम करेंगे, but अभी देखो ना कैसी टर्म्स आएंगी. A, B, C, A square, B, बहुत 3 डिग्री टर्म्स आएंगी. बाद में चलकर वो ABC कॉमन निकलेगा, सॉल्व हो जाएगा, अलग बात है. But if you look at the first equation, yes, correct, Palash, Swagatam, everybody is correct. If we use the first equation, a plus b की value क्या लिख सकते हैं? A plus b is -3 minus c. Similarly, what is b plus c? b plus c को हम लिख सकते हैं -3 minus a. Then what? c plus a को हम लिख सकते हैं, c plus a is -3 minus b. तो देखो इसको मल्टीप्लाई करना कहीं ज्यादा इजी है कि नहीं? अभिनव का आंसर है -23. ओके, अभिनव इज गेटिंग -23 and Sadgun is obviously getting a different answer. Ananya is also getting 23. ओके, 2 वोट्स मिल चुके हैं भाई 23 को. और देखते हैं डेमोक्रेसी विंस और ऑटोक्रेसी विंस. I would be wrong. Oh, so confident you are, Sadgun, huh? I would be wrong. Why are you so confident? Come on. हो सकता है तुम सही हो भाई. Take minus common. This is 3 plus a into 3 plus b into 3 plus c, which will be equal to t. Minus minus cancel out हो गया. No, you are sometimes. ऐसी बात नहीं है. You can be correct. Now guys, if you want to multiply these three, because there is a shorter approach, but I believe हम इसको multiply करेंगे तो भी हमको आंसर सही मिलेगा. बस तुम्हें इन तीनों को multiply करना है और t बताना है. I don't think anything now can stop you to find the correct answer. Yadniyesh is also getting 23. Okay. देखते हैं भाई. What are you guys getting? आंसर क्या आ रहा है? But when you multiply these three, you will get 3 into 3 into 3, because you just multiplied x minus alpha, x minus beta, x minus gamma. So it is a similar approach, right? 3 into 3 into 3, it is 27. Plus 3 into 3 into c. तो अगर तुम multiply करो, it will be 9 times a plus b plus c. Then it will be 3 times ab plus bc plus ca. And finally, this is ABC. And now you just have to substitute the value of a plus b plus c, ab plus bc plus c, and abc. What is a plus b plus c? -3. Substitute -3. 27 minus 27 cancel. 3 times ab plus bc plus c. So 12 and plus 11. Yes. If you are getting 23, then you are getting the correct answer. Okay, good. So, almost all of you have got the correct answers, apart from those who are not responding, even on chat. It is 23. Okay, fine. It is 23. What about others? Like Shravani? What is your answer?
यस, ठीक है. नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, प्रेस 3. सेकेंड क्वेश्चन देखो भाई. इन दिस क्वेश्चन इज अ बिट डिफिकल्ट. टेक योर टाइम, ठीक है, आराम से हम करेंगे, कोई जल्दी नहीं है. ध्यान से देखना कि भाई हमारे पास जो पहली क्यूबिक है, अब इस बार कोई वैल्यू दी नहीं है. एंड इफ यू लुक क्लोजली, वन वैल्यू इज मिसिंग. सो वी हैव एक्स क्यूब प्लस एस एक्स प्लस टी इक्वल टू 0 हैविंग 2 रूट्स. अब हैविंग 2 रूट्स मतलब ये नहीं कि इसकी 2 ही रूट्स हैं. इसका मतलब है कि इसकी तीसरी रूट के बारे में दिया नहीं है. ए एंड बी आर 2 रूट्स, अदर रूट जो भी है उसके बारे में कुछ बताया नहीं है. सिमिलरली देयर इज वन मोर क्यूबिक विच लुक्स एग्जैक्टली सेम, एक्स क्यूब प्लस एस एक्स प्लस टी प्लस यहाँ पे 240 कर दिया गया है. और इसकी रूट्स में थोड़ा चेंज हो गया. ये रूट्स आ गई हैं a प्लस 4, b माइनस 3 और थर्ड रूट एक बार फिर नहीं है. फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t. वन इज कॉम्प्लेक्स, कैनॉट से. वी कैन हाउ कैन वी, if you are saying one is complex, then it is fine because complex covers all possible numbers. But if you are trying to show, or if you are trying to say that one root will be imaginary, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई सदगुण, ठीक है. वन रूट कैन बी एनीथिंग. हमें नहीं पता वन रूट क्या होगी. तो फिलहाल ये क्वेश्चन है भाई, हमको t की वैल्यू निकालनी है. ऑल पॉसिबल वैल्यूज, जितनी पॉसिबल वैल्यूज है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट कैन वी से अबाउट द थर्ड रूट? What can we say about the third root? What can we say about the third root? थर्ड रूट के बारे में क्या बोल सकते हैं भाई? अगर तुमने इन दोनों क्यूबिक इक्वेशंस को देखा हो, यस यस, वेरी गुड, स्वागतम सदगुण, सॉरी स्वागतम. S is not sum of roots. Minus S is not sum of roots. Sum of roots is 0. X square की टर्म मिसिंग है, ध्यान से. B 0 है. अगर मैं थर्ड रूट यहाँ पे अल्फा बोल दूँ, यहाँ पे मैं इसको बीटा बोल दूँ, what is the value of alpha? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है. A plus B plus alpha will be equal to 0. यही नहीं इसमें. Yes. So what is the value of alpha? Alpha is minus of a plus b. ये है इसकी थर्ड रूट, minus of a plus b. Similarly, if you are trying to find beta, a plus 4 b minus 3 plus beta will be equal to 0. So what is beta? What is the value of beta? See, 4 minus 3 is 1, a plus minus of a plus b plus 1. Minus of a plus b plus 1. Plus a minus b plus 1. a minus b plus 1 कहाँ से आ गया? हाँ, that is correct. Is it guaranteed that t will be constant? Yes, yes, it is. But there can be multiple possibilities. There can be multiple values possible. हो सकता है t की वैल्यू 2 भी हो सकती हो, 3 भी हो सकती हो. But ultimately you are going to get a constant value. तो वियतास फॉर्मूले ने हमारी हेल्प कहाँ पे की? हेल्प यहाँ पे कर दी कि तीसरी रूट हमको बता दी भाई. थर्ड रूट जो कि हमारे पास इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी नहीं थी, वो आ गई है. थर्ड रूट आ चुकी है, करेक्ट है कि नहीं? अब क्या करें? नाउ व्हाट? अब क्या किया जाए वो तुम्हें सोचना है. प्रेस 3, लुक एट द क्वेश्चन अगेन. तीनों रूट्स मैंने तुम्हें इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी दे दी है. अब क्वेश्चन ये है कि भाई कैसे हम लोग t की वैल्यू फाइंड करें. ये केवीपीवाई ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है, समझे? अच्छा क्वेश्चन है.
बट ऐसा नहीं है जो तुम सॉल्व ना कर पाओ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट, व्हाट प्रोडक्ट? आंसर शुड बी अ कांस्टेंट। वेदांत जे और अगेन इनकरेक्ट, गलत हो भाई तुम। आंसर इसका कांस्टेंट होना चाहिए। किसी को और कोई आंसर मिल रहा हो तो गलत है। आंसर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी नहीं, आंसर कांस्टेंट आएगा। एंड वेदांत जे योर इक्वेशन इज रॉन्ग। देखो क्यों गलत है भाई, इक्वेशन गलत लिखी है तो आंसर कहां से आएगा? वेदांत जे, कौन यार? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस 240 नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस ऑफ टी प्लस 240 है। व्हाट आर यू सेइंग? कांस्टेंट टी प्लस 240 है। नो, ट्राई टू सॉल्व इट भाई, सॉल्व किए बिना आंसर नहीं आएगा। दिस इज नॉट द वे। तुक्केबाजी मत करो। और वेदांत जे अपनी इक्वेशन सही करो यार। वेदांत जे गलत इक्वेशन लिख के बैठे हो। क्या डेवलपमेंट है भाई? कोई बताएगा क्या कर रहे हो तुम लोग? कैसे आगे, कैसे स्टार्ट कर रहे हो? आगे तुम लोग क्या कर रहे हो बताओ? विल टेक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा, प्रेस 3। यस, सो अगर हम वियताज फॉर्मूले अप्लाई करें, इतने में तो हमने कर दिया, हमने थर्ड रूट निकाल ली सम ऑफ रूट से। बट यू नो देयर आर 3 formulas possible. Sum of roots taking 2 at a time and product of roots. तो अभी और भी फॉर्मूले पॉसिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो s, व्हाट इज s? अगर तुम s2 कैलकुलेट करो, सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 2 एट a time, which means what? Alpha beta, beta gamma and gamma alpha. It is AB प्लस b इंटू अल्फा, चलो अल्फा ले देता हूं मैं इसको, अल्फा प्लस b अल्फा प्लस अल्फा इंटू ए, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? c बाई a, दिस शुड बी s। ये s होना चाहिए। सिमिलरली इफ यू लुक एट सेकेंड इक्वेशन देखो तो यहां पर a plus 4 into b minus 3 alpha beta plus beta gamma, I mean gamma यहां पर बीटा है, and plus beta into a plus 4. Now this also should be equal to s. दोनों ही वैल्यूज s के इक्वल हैं। देखो ये भी s के इक्वल है और ये भी s के इक्वल है। सो दैट मीन्स व्हाट? इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो, अलजेब्रा जो है हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशंस हैं।
अगर, तो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकल सकती है। इन दोनों को इक्वेट करो। ऑब्वियसली तुम्हें अल्फा की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी और यहां पर बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, है ना? सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज ए बी इंटू बी अल्फा इंटू अल्फा आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग अल्फा इज माइनस ए प्लस बी। व्हाट इज दिस S2? ये S2 क्या आता है बताओ? S की वैल्यू क्या आ रही है? What is the value of S you are getting? Tell me. S equals to what? भाई इतना तो कैलकुलेट कर सकते हो ना? माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ सही बोल रहा है शायद ये। माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आई थिंक दिस इज करेक्ट। क्यों भाई? यस। एंड व्हाट अबाउट द सेकेंड? इसमें थोड़ा अगर तुम्हें टाइम लगे, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, बट सही से इसको सॉल्व करके बताओ क्या आता है। सॉल्व करो, चलो। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बीटा। बीटा इज व्हाट? माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस 1, वहां पे रखकर और सॉल्व करो। इफ यू टेक दिस बीटा कॉमन, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी भाई। देखो ना, ए प्लस 4 इंटू बी माइनस 3, इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करो, मैं यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, you will get AB plus 4B minus 3A minus 12। और यहां पे अगर मैं बीटा कॉमन निकाल लूं, व्हाट इज बीटा? बीटा इज माइनस ऑफ A प्लस B प्लस 1। और बीटा अगर मैंने कॉमन निकाला तो B माइनस 3 और A प्लस 4 देखो ऐड हो गए, वापस बन जाएगा A प्लस B प्लस 1। तो ये कुछ और नहीं है, A प्लस B प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करो एंड टेल मी व्हाट डू यू गेट? आई थिंक यू विल गेट माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab माइनस प्लस ए बी माइनस ए बी। देख रहे हो, तीनों सेम टर्म्स आ गई। एंड व्हाट एल्स? माइनस 2a माइनस 3a, आर यू गेटिंग माइनस 5a? चेक द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में देखना, माइनस 5a and I think minus 2b plus 4b, so I'll get plus 2b, and finally I think I'll get minus 1 and minus 12. Is it minus 13? Calculate करो और check करो। Okay, so if you equate these two, minus a square will get cancelled, minus b square minus ab, all these three terms will get cancelled, and now you will get a linear expression in a and b, right? What are we getting? We are getting 5a minus 2b plus 13 equals to 0, and call this equation number 1. So guys, whatever I am doing is very basic. Question किसी भी लेवल का हो, मैंने केवल वेतास फॉर्मूले अप्लाई किए हैं। आई चेक्ड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बाय द फॉर्मूला इट इज सी बाई ए, तो एस के इक्वल हुआ। दोनों ही जगहों पे देखो एस लिखा हुआ था, यहां भी एस और यहां भी एस। तो अगर ये कैलकुलेशन हमारी करेक्ट है, विच यू हैव टू वेरीफाई, तो ये इक्वेशन भी हमने करेक्ट लिखी है। एंड आई थिंक अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। व्हाट? ऑब्वियसली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या होगा ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? देखो ना, फर्स्ट क्यूबिक की रूट्स क्या है? इट इज a, इट इज b एंड इट इज माइनस ऑफ a प्लस b, which is equal to what in that equation? minus t, right? तो अगर मैं उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं तो p इक्वल्स टू आएगा माइनस, या p को हटाओ, जरूरत ही नहीं है p की, द वैल्यू ऑफ t माइनस माइनस कैंसिल and it will be ab into a plus b, right? ab into a plus b, ab into a plus b is equal to t. But this is what you are getting from first equation. What about second equation? Second equation में this whole thing is constant.
So if I take product of roots in second equation, it will be a plus 4 into b minus 3 and into minus of a plus b plus 1. और ये फिर से एक बार तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, बट रिमेंबर इट इज नॉट माइनस टी, इट इज नॉट माइनस टी, इट इज माइनस ऑफ टी प्लस 240. So don't forget both terms are constant, t and 240, right? So minus of d by a, ये तो बनी है. Simplify this, जो भी calculations है बताओ, करने के बाद you must get t equals to something. What are you getting? Tell me. इसको solve करने के बाद obviously minus cancel होगा. I want you to simplify it and tell me what are we getting. करो. भाई a प्लस 4 और b माइनस 3 इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर चुके हैं ना. इट इज ab प्लस 4b माइनस 3a माइनस 12. तो ये तो मल्टीप्लाई कर ही चुके थे. माइनस माइनस मैंने कैंसिल कर दिया. चलो अभी 240 बार हैं तो यहां पर तुम्हें a प्लस b प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है. अब ये देखो ab इंटू ए प्लस बी, क्योंकि ये टर्म यहां भी आ रही है तो उसको मैं ऐसे लिखता हूं, दिस इज ए बी इंटू ए प्लस बी. तो ये एज इट इज रहने देते हैं. और क्या आएगा अभी ए बी इंटू 1, तो ये ए बी हो गया. ये देखो अब 4b मल्टीप्लाई होगा. 4b विल बी मल्टीप्लाइड टू ऑल 3 टर्म्स. तो क्या आएगा यहां पर 4ab 4ab 4b इंटू बी 4b स्क्वायर and 4b 4b इंटू 1, तो 4b एक आ गया. ऐसे माइनस 3 है तो माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3ab एंड माइनस 3a एंड फाइनली माइनस 12. सो माइनस 12 से क्या आएगा माइनस 12a माइनस 12b and minus 12 equals to t plus 240. The value of t is this, ab into a plus b. So I think बाद में क्यों इक्वेट करो, पहले ab into a plus b और t को हम कैंसिल कर देते हैं. एंड आफ्टर कैंसिलेशन देखो ab 4ab minus 3ab और कोई टर्म तो है नहीं. यस. So what are we getting? Are we getting 2ab? Yes, we are getting 2ab. What else? Minus 3a square. Minus 3a square. और क्या मिल रहा है? Plus 4b square. Plus 4b square. Look at this. 4b and minus 12b. So minus 8b. Minus 3a minus 3a और कहीं हाँ इधर minus 12a minus 15a minus 15a and finally what is the constant term? देखो 240 इधर आएगा जब minus 12 के साथ तो हो जाएगा minus 252 equals to 0 and call this equation number 2. I hope my calculation is correct. हाँ कैलकुलेशन सही होनी चाहिए. Vedant J is saying minus 2ab होना चाहिए. क्या बोल रहा भाई? माइनस 2ab क्यों आएगा? 4ab माइनस 3ab प्लस ab तो प्लस 2ab आएगा ना. वेदांत जे. एनीवेज तो अब ये जो पहली इक्वेशन है देखो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, वी हैव 2 वेरिएबल्स एंड वी हैव 2 इक्वेशंस. कैन यू सॉल्व दीज 2? बिकॉज अगर तुम्हें a और b मिल गया, यू हैव t. देखो ना जो t हमको निकालना है, इट इज व्हाट? इट इज ab इंटू a प्लस बी.
तो ए बी इंटू ए प्लस बी निकाल, अगर ए बी निकल गया तो काम हो गया ना। कैन यू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस? हाउ विल यू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस? टेल मी, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाए? बताओ भाई, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करा जाए? कम ऑन। अरे भाई 2b की वैल्यू क्या है? 2b की वैल्यू 5a प्लस 13, यहां पे डाल दो। डो नॉट ऐड देम, डो नॉट ऐड देम, नो नो। ट्राई टू एलिमिनेट वन वेरिएबल। 2b की वैल्यू 5a प्लस 13 यहां पे डालो ना। देखो 2b, यहां 2b होल स्क्वायर माइनस 8b, तो पूरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a आ जाएगी। चलो करो, डू इट। प्रेस 3। सभी लोग 2b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो पहली इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में 2b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। You must get a quadratic in A. A में एक क्वाड्रेटिक हमको मिलनी चाहिए। अब इतनी तो कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी भाई, मैं नहीं करा रहा। ये कैलकुलेशन खुद करो। 2a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और 2a की ये वैल्यू सॉरी 2b की वैल्यू। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक यू आर गेटिंग? क्वाड्रेटिक क्या मिल रही है बताओ? क्योंकि अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक सही मिलेगी, तुम्हें a की, ऑब्वियसली इसका मतलब a की दो वैल्यूज होनी चाहिए, है ना। So what are the two possible values of why it's taking so long यार? इतनी कैलकुलेशन तो नहीं है, तुम लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। किसी के भी क्वाड्रेटिक नहीं है अभी तक। 27a स्क्वायर माइनस 108a माइनस 135। वाओ, ओके। ये 9 कॉमन निकाल लो स्वागतम। 2a स्क्वायर। अनन्या चेक योर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन एक बार चेक करना पड़ेगा, बिकॉज 2ab तो अगर मैंने 2b को 5a प्लस 13 रखा, 5a प्लस 13 है ना, सो a इंटू 5a प्लस 13 माइनस 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर मीन्स 2b होल स्क्वायर। 2b होल स्क्वायर मतलब 5a प्लस 13, 5a प्लस 13 होल स्क्वायर एंड minus 8b. So minus 8b means minus 4 into 2b. 2b is 5a plus 13. 5a plus 13. And minus 15a minus 252 equals to 0. इतनी कैलकुलेशन करनी है। Yadnesh is saying 3a square plus 15a minus 12. Okay, देखते हैं। 5a square minus 3a square, 2a square, 2a square and 25a square, 27a square. So you must get 27a square. Obviously simplify बाद में कर लेंगे। 27a square. स्वागतम का आंसर आ गया, very good. 27a square, okay. a का कोएफिशिएंट क्या आएगा भाई? 13a, 13a
आई थिंक यहां से 130A, तो 13 प्लस 130 143, एंड 143 minus 20 123, and 123 minus 15 108. Is it 108A you are getting? Is it 108A? Okay. And what about the constant term? There is no constant term, no constant term. 169 minus 52 is what? 17. And 17 minus 252 कितना हो गया भाई? माइनस था यार, माइनस व्हाट? कोई बोल नहीं रहा है. कांस्टेंट टर्म क्या रही है? 135 once again. 169 minus 52. Okay. So 169 minus 252. ठीक है, 135. And if you take 9 common, it will become 3A square plus 12A. In fact, whole 27 यार, 27 कॉमन निकाल लो. चलो ठीक है, 9 ले लिया पहली बार में. तो 15, you can take 3 common. A square plus 4A minus 5 equals to 0. So after solving, after doing all this, we ended up having this quadratic which has very nice roots. देखो ना, A की वैल्यू क्या आ रही है? 1. It should be 1 or minus 5. What will be the corresponding value of B from equation number 1? What will be the corresponding value of B? If A is 1, A को यहाँ पे 1 रखो, 2B is 5A plus 13, 18 by 2, I think B is 9. And if A is minus 5, minus 25 plus 13, minus 12 by 2, I think, is it minus 6? Is it? Minus 6. 12, yes. So we have A equals to 1, B equals to 9. We have A equals to minus 5, B equals to minus 6. And then the final question was to find the value of T. हमको T निकालना था भाई. So T equals to AB into A plus B. So it can be, if I substitute 1 and 9, 1 into 9 into 10, which is 90. Or if I substitute minus 5 and minus 6, minus 5 and minus 6, what will get? 30 into minus 11, I think minus 330. Yes. So what was the question? Find the sum of all possible values. इन दोनों का sum देखो क्या आएगा भाई. What is your final answer? What is your final answer? minus 240. और अब अगर तुम क्वेश्चन पे प्रेस 3, क्वेश्चन पे जाओ and look at the second cubic, 240 is mentioned there. 240 वहां पर लिखा हुआ है. You said so, I know Sadgun, you said so, but without solving it. ऐसा नहीं मान लेंगे कि आंसर आ गया है ना. तो आंसर minus 240 आया और वहां पर वो कांस्टेंट 240 लिखा हुआ है. Is there a link? क्या कोई कनेक्ट? Because this is not the value of T, it is the sum of all possible values of T. तो ये जो है हमको एक बार सोचना पड़ेगा कि क्या कोई कनेक्शन है इसमें आपस में. राइट. सो फिलहाल ये जो क्वेश्चन ने सॉल्व किया, इस क्वेश्चन की रेटिंग ऑब्वियसली एडवांस के लिए क्वेश्चन इररिलेवेंट है, बिकॉज इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता है. बट तुम देख सकते हो कि वियतास फॉर्मूले की हेल्प से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है. तो जो केवीपीवाई के क्वेश्चंस होते हैं वो इस लेवल के होते हैं, वहां पर ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें मिल सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड.
राइट, दिस इज रैशनल रूट थ्योरम. अब ये मैं चाहता हूं कि देखो इसकी तुम्हें कोई खास जरूरत तो नहीं पड़ने वाली है. यू हैव अ डाउट इन प्रीवियस स्लाइड, सो व्हाई नीड यू आस्क व्हेन आई. चलो ठीक है, पूछो. देखो भाई, पिछली साइड पे जाओ, पिछली साइड, लास्ट. हाँ बताओ क्या डाउट है इसमें. प्रीवियस स्लाइड में तो क्वेश्चंस हैं, इसमें डाउट क्या है? कम ऑन, डू इट फास्ट. I have a doubt in previous slide. From first equation, if we substitute the first equation in second, that's what we did. We got 240 equal to 0. अरे come on यार, दोनों के x अर्नव सेम नहीं हैं. फर्स्ट इक्वेशन, और तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं, आई विल गेट 240 इक्वल टू 0. तो भाई यहां पर x अलग अलग है. दैट सिंपली मीन्स दीज टू क्यूबिक इक्वेशंस विल नॉट हैव एनी कॉमन रूट. वी डू नॉट हैव दिस x सेम, राइट? x दोनों में सेम नहीं है. ओके, फिर भी चलो ठीक है, तो जेन्युइन डाउट है. अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देन 240 इक्वल टू 0 आ रहा है, विच मीन्स वी आर गेटिंग ए कॉन्ट्राडिक्शन. और कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब our assumption is wrong. दोनों के x डिफरेंट है. there is no common root. अब जरा नेक्स्ट स्लाइड पढ़ो भाई, नेक्स्ट स्लाइड. एन इक्वेशन विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट, सारे के सारे कोएफिशिएंट्स इंटीजर्स, हैज द रैशनल रूट p by q, where p and q are co-prime. Then p is an exact divisor of a naught, यानी ये कांस्टेंट टर्म, एंड q इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ a n. तुम केवल स्टेटमेंट लिख लो, फैक्टर थ्योरम से तुम उसको प्रूव भी कर सकते हो. जैसे मैंने कहा कि ऑल दीज पॉइंट्स आर बियॉन्ड द सिलेबस ऑफ जेई, वेदर इट इज जेई एडवांस और मेन, जो भी हो. तुम केवल इस थ्योरम को लिख लो और इसका हम एप्लीकेशन देख लेते हैं, बिकॉज इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन, प्रूफ या उन सब चीज़ों रिक्वायरमेंट नहीं. अगर तुम्हें इसका प्रूफ चाहिए, डिटेल डिस्कशन चाहिए, यू कैन अटेंड KVY क्लासेस. बट मैं चाह रहा था कि एक बार थ्योरम हम नोट रखें यहाँ पे भी, तो बस इस थ्योरम को नोट कर लो और मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर. आई विल एक्सप्लेन इट. नोट डाउन. इफ एन इक्वेशन विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स, ये सारे कोएफिशिएंट्स इंटीजर्स हैं, an, बिकॉज डिविजिबिलिटी की जब बात आती है तो ऑब्वियसली कोएफिशिएंट्स इंटीजर होने चाहिए. ठीक है? सो ऑल कोएफिशिएंट्स आर इंटीजर्स, हैज द रैशनल रूट p by q. जो रूट है हमारी वो रैशनल है, p by q, इंटीजर अपॉन इंटीजर, वेयर p and q आर को-प्राइम. यू नो दैट डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स सिंप्लीफाइड फॉर्म में है. तो जो भी ये रूट होगी ना, इसका जो न्यूमरेटर होगा p विल डिवाइड a नॉट. p जो है a नॉट को डिवाइड कर रहा होगा. और वेदांत जे, आंखें खुली रखो, दिमाग चालू रखो. a इक्वल टू -5 और b इक्वल टू 9 नहीं था. ठीक है? तो इन एन एग्जैक्ट p will be an exact divisor of a naught and q will be an exact divisor of a n. ध्यान रखना कि न्यूमरेटर जो है वो कांस्टेंट टर्म को पूरी तरह से डिवाइड करेगा और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कोएफिशिएंट ऑफ, जिसको हम बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, उसको डिवाइड कर रहा होगा. तो अगर इस थ्योरम को तुम लिख चुके हो तो इस क्वेश्चन पे उसको अप्लाई करके देखो. क्वेश्चन ये है कि हमको इस क्यूबिक की सभी रैशनल रूट्स चाहिए. वी वांट टू फाइंड वेदांत जय अगेन. इफ वी आर, कोई अगर स्केलिंग हो रही होती ना, कोई मतलब हद है यार.
you're crossing all the limits, there will be 4 possible answers. In the previous question, there will be 4 possible answers. A equals to इसके लिए 2 answers, A equals to इसके लिए 2 answers. What can I say? क्या कहूँ मैं तुम्हें यार? इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ी. A की वैल्यू जब 1 रखी, तब B की वैल्यू क्या आई? A की वैल्यू -5 रखी, तब B की वैल्यू क्या आई? देख लेना इक्वेशन 1 क्या है. तूने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं यार. 4 आंसर निकाल रहा है उसके. तुम्हें अगर हम रैशनल रूट थ्योरम लगाएं, जरा an को और a0 को देखो यहां पर. अगर इस क्यूबिक की कोई भी रैशनल रूट है, अगर कोई भी रैशनल रूट p बाई क्यू फॉर्म की है, तो वो रूट, उस रूट में स्पेशल क्या होना चाहिए? देखो मैं लिखता हूं. हमारे पास क्वेश्चन आया कि 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. अब हाँ, प्लस 3. let p by q be a root. let p by q, I don't know कि इसकी रैशनल रूट है कि नहीं. हो सकता है इसकी कोई रैशनल रूट ना हो. इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि कोई रैशनल रूट ना हो. लेकिन अगर इसकी कोई रैशनल रूट है, तो रैशनल रूट थ्योरम क्या बोलती है? p जो न्यूमरेटर है, इट मस्ट डिवाइड, वैसे -6 लिख सकते हो, बट 6 लिखेंगे बात चलेगी. p मस्ट डिवाइड 6 as well as, and q must divide 2. जो न्यूमरेटर है वो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है वो इस टर्म को, इस कोएफिशिएंट को डिवाइड करना चाहिए. नाउ at how many possible p by q we are looking at? Because p is dividing 6, so what are the possible factors of 6? It can be plus minus 1, it can be plus minus 2, it can be plus minus 3, or it can be plus minus 6 itself. These are the possible values of p. What are the possible values of q? Now q must divide 2. Plus minus 1, plus minus 2, obviously plus minus आ ही चुका है, तो मैं अभी केवल 1 लिख दे रहा हूँ. 1 और 2 भी हो सकता है, तो प्लस माइनस 1 by 2, plus minus 2 by 2, plus minus 3 by 2, and plus minus 6 by 2. So out of all these possibilities, अगर कोई पॉसिबिलिटी, कोई रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई, तो इसकी रैशनल रूट है. अगर इनमें से कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती है, देन दिस इक्वेशन हैज नो रैशनल रूट. कोई रैशनल रूट नहीं है इसके पास. इसका मतलब इसकी इरैशनल रूट हो सकती हैं, बाकी रूट्स इमेजिनरी हो सकती हैं, क्या पता. बट अगर इसकी कोई भी रैशनल रूट है, तो वो इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में से ही होनी चाहिए. ये जो नंबर्स हैं, अगर तुम इसको देखो ध्यान से, इट इज प्लस, चलो मैग्नीट्यूड के ऑर्डर लिखते हैं. द स्मॉलेस्ट वन इज प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, देन कम्स आई थिंक प्लस माइनस 1, दोनों सेम ही हो गए, प्लस माइनस 1, then comes I think plus minus 3 by 2, right? Then plus minus 2, then plus minus 3, same हो गया, plus minus 3, and plus minus 6. So how many possibilities are there? We have in total 12 possibilities. भाई क्या करते हैं हम? How do we solve a cubic? तुक्केबाजी से 1 रखा, 2 रखा, -1 रखा, -2 रखा, सेटिस्फाई कर गया तो अच्छी बात है, नहीं करा तो हम करते रहते हैं, और कभी फेल भी हो सकते हैं, हो सकता है रूट हो ही ना, एफर्ट वेस्ट हो रहे हैं. वही तुक्केबाजी हम वापस करने जा रहे हैं, बट दिस इज अ बेटर मेथड. व्हाई इट इज अ बेटर मेथड? बिकॉज वी हैव लिमिटेड पॉसिबिलिटीज. वी आर नॉट गोइंग टू सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू ऑफ x. नाउ
there are defined steps कि हमको यही वैल्यूज चेक करनी चाहिए, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं. So let's check plus minus half. What do you think? Plus half or minus half will it satisfy? Plus half or minus half रख के देखो. I think plus minus half रखने पर ये तो चलो प्लस हाफ मान लो मैं रख रहा हूँ, ये -1 हो गया. I don't think it will satisfy. Will it? 1/4 minus 7/4 चेक करो एक बार. प्लस माइनस हाफ सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है. What about plus minus 1? Plus minus 1, no it will not. What about plus minus 3/2? Plus 3/2 or minus 3/2? Come on, check. चेक किए बिना मैं बताओ भाई. प्लस 3/2 और माइनस 3/2 चेक करो. माइनस 3/2 चेक करने की कोई जरूरत है नहीं. मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा कि माइनस चेक करने की जरूरत नहीं? बिकॉज माइनस 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 सब माइनस हो जाएंगे, तो नेगेटिव रूट तो उसकी हो ही नहीं सकती है. अगर कोई रूट होगी तो पॉजिटिव होगी. बाय दैट लॉजिक 12 की जगह केवल 6 चेक करना है. सो चेक 3/2. चलो 3/2 चेक करते हैं. 2 into 27/8 minus 7 into 9/4 plus 10 into 3/2 minus 6. चेक करो कि क्या ये कुछ हो रहा है इसमें. 27 minus 63 कितना हो गया भाई? कैलकुलेट करो. और ये तो इंटीजर बन ही गया 15. तो 27 minus 63 क्या सेटिस्फाई नहीं हो रहा? नहीं हो रहा. कितना आ रहा है? 63 27 आई थिंक 36 हो तो रहा है. कौन सी कैलकुलेशन करते हो तुम लोग? अरे भैया मालिक लोगों, कैलकुलेशन सही कर लो यार. क्या क्या तुम लोग कहां से आए हो भाई? मैं जो ओरली कर पा रहा हूं तुम लिख के भी नहीं कर पा रहे हो. It won't. No, it won't. Come on. 27/4 minus 63/4. 27 minus 63 minus 36/4 minus 9 minus 6 minus 15 plus 15 हो तो रहा है 0. Shit. So 3/2 satisfies. 3/2 is a root. 3/2 इसकी रूट है. बाकी जो पॉसिबिलिटीज बची उनको चेक करना बड़ा आसान है. 2 3 6 2 सेटिस्फाई नहीं करता है, नहीं करेगा. 3 सेटिस्फाई 54 नहीं करेगा. तो इसके अलावा और कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है. दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स इसके अलावा जो बाकी 2 रूट्स हैं, बिकॉज क्यूबिक है तो 3 रूट्स तो होंगे, इसके अलावा जो बाकी की बची हुई रूट्स हैं वो रैशनल तो कंफर्म है नहीं है. अब या तो वो इरैशनल रूट्स हैं या फिर वो इमेजिनरी रूट्स हैं. एंड नाउ वी नो हाउ टू फाइंड द अदर 2 रूट्स. हाउ विल यू फाइंड अदर 2 रूट्स? बिकॉज वी ऑलरेडी हैव 1 रूट बाय फैक्टर थ्योरम. 2x cube minus 7x square plus 10x minus 6 equals to एक फैक्टर इसका डेफिनेटली 2x minus 3 होगा. Why? Because x equals to 3/2 satisfies. And how will you find the other factor? Divide by this. इससे डिवाइड कर दो. इससे जब तुम डिवाइड कर दोगे you will get a quadratic. क्या मिलेगी भी quadratic? यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर, यहां पे आई थिंक आएगा 2 minus 6 और यहां पे क्या आएगा? आई थिंक चेक करना. इज इट minus 2x? आर वी गेटिंग minus 2x? 6 plus 4 10. yes. 4x square minus 3x square. yes, correct. And check the roots of this quadratic. Roots of this quadratic are imaginary. These 2 roots are imaginary. Understood? तो ये था हमारा रैशनल रूट थ्योरम. रुके रहो 1-2 पॉइंट्स और हैं. समझ में आई रैशनल रूट थ्योरम? P divides
The constant term Q divides the leading coefficient. Next point. Answer is 3/2. Yes. Next. And this is the last point I wanted to cover. ये point cover मैं इसलिए करना चाह रहा था because actually quadratic में भी तुम्हें कुछ questions मिलेंगे जहां पर ये point helpful हो सकता है. This point will be covered in calculus thoroughly. आराम से हम इसको कवर करेंगे. कंटिन्यूटी एक पॉइंट आएगा जब कैलकुलस में लिमिट्स के बाद. तो दिस थ्योरम इज कॉल्ड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. अब मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूं, इसका एप्लीकेशन क्या है वो तो हम क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन स्टेटमेंट तुम एक बार लिख लो फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं. जस्ट लुक एट द स्टेटमेंट. देयर इज अ कर्व. ये जो कर्व है हमारा वो कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस मीन्स ये ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होता है बिटवीन ए एंड बी. और W जो है वो हमने FA और FB के बीच में एक नंबर लिया हुआ है. तो स्टेटमेंट ये है कि देयर विल बी एट लीस्ट वन वैल्यू C फॉर विच FC विल बी इक्वल टू W. ये तो स्टेटमेंट है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का. बट डोंट वरी, तुम्हें इस स्टेटमेंट से अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है. अगर तुमने स्टेटमेंट तुमने प्रिंट स्क्रीन कर लिया हो, इमेज ले ली हो, या फिर तुमने लिख लिया हो, तो जिस पॉइंट से मतलब है उस पर हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. इसको लिखने की भी इनफैक्ट कोई जरूरत नहीं है, बस मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है. ओके, नोट करना चाहते हो? नोट कर रहे हो क्या इसको? बताओ. नहीं? अच्छा ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो. The statement of the theorem is that if W belongs to FA, FB. Yes, note from slides. And this function, the graph of the function is continuous. तो फिर A और B के बीच में, A और B के बीच में you will get a value C for which FC will be equal to W. FC जो है W के इक्वल होगा. अब इसका मतलब क्या है मैं तुम्हें भी एक्सप्लेन करता हूं. डन? कौन टेक स्क्रीनशॉट ना, क्या फर्क पड़ता है? नहीं? डन. ओके, हो गया सभी का? यस यस, आई ओके. नेक्स्ट स्लाइड. ये देखो, और मैं चाहता हूं कि तुम लोग सबसे पहले पॉइंट नंबर 3 देखो. पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? फॉर अ पॉलिनोमियल y इक्वल्स टू px, if pa into pb is negative, then there must exist at least one real root of px equal to 0 in a to b. प्रेस 3 प्रेस करो. हाँ भाई, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि सपोज यहां पर ये A है और यहां पर B है. अब मैं बात इन जनरल कर रहा हूं. तुम पैराबोला दिमाग में इमेजिन कर सकते हो, बट क्यूबिक का ग्राफ पैराबोला नहीं होगा, डिग्री 4 का ग्राफ पैराबोला नहीं होगा, बट अभी के लिए तुम पैराबोला इमेजिन कर सकते हो. अब मान लो कि मुझे ये इंफॉर्मेशन है कि भाई पैराबोला या जो भी पॉलिनोमियल है उसकी इस पॉइंट पर वैल्यू पॉजिटिव है, P ऑफ A इज पॉजिटिव, और पॉइंट B पर उसकी वैल्यू P ऑफ B जो है वो नेगेटिव है. A पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और B पर इसकी वैल्यू नेगेटिव है. हमको पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल ग्राफ कंटिन्यूअस होता है, ग्राफ कभी ब्रेक नहीं होता. इस पॉइंट से ग्राफ और इस पॉइंट से ग्राफ को पास करना है. इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यह कहती है कि अगर इन दोनों पॉइंट से ग्राफ पास करता है तो डेफिनेटली कम से कम एक बार एक्स एक्सिस को ए और बी के बीच में कट करेगा, क्योंकि ये एक पॉइंट है जहां पर वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और ये पॉइंट है जहां पर वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है. तो तुम ग्राफ कैसा भी बना लो, इसे एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार तो कट करना ही पड़ेगा. और इसका अगर कोई प्रूफ पूछेगा, मैं कहूंगा ये देखो भाई, पेन यहां रखो,
और इस पेन को यहां रखकर इस पोजीशन पर लेके आओ विदाउट लिफ्टिंग इट, कैन यू डू इट विदाउट इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस? इज इट पॉसिबल? टेल मी। अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करना है विदाउट लिफ्टिंग द पेन, अ कंटिन्यूअस ग्राफ, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि हम एक्स एक्सिस को कट ना करें? क्योंकि अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे, क्यों लग रहा है किसी को? चलो ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। और किसी को ऐसा लगा कि हमने एक्स एक्सिस को कट नहीं किया है, तो भाई हमने एक्स एक्सिस को कट किया है। बट एनीवेज दिस ग्राफ इज नेवर पॉसिबल. Why it is not possible? Because for one value of x you can never get two outputs. एक इनपुट के लिए मल्टीपल आउटपुट्स नहीं हो सकते, तो ये ग्राफ वैसे भी पॉसिबल नहीं है, राइट? मैं फिर कह रहा हूं कि यहां पर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं a और b. अगर a पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, b पर उसकी वैल्यू नेगेटिव है, यानी एक पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है और एक पॉइंट x एक्सिस के नीचे है. If you want to join these two points, it has to intersect x axis somewhere. And why this point is important? Because this is the point where the root of this polynomial equation will lie. भाई जहां पर ग्राफ कट करता है वही तो रूट होती है, isn't it? बताओ. If you are still finding it difficult, look at this cubic. इस प्रीवियस एग्जाम्पल के पास जाओ. इस एग्जाम्पल में अगर मान लो मुझे रूट्स का एक आइडिया लगाना है कि रूट है कहां पर. ये क्यूबिक है और इसकी रूट है कहां पर. लेट्स से दिस इज p ऑफ x. ये p ऑफ x है. दिस इज p ऑफ x. इफ आई आस्क यू व्हाट इज p ऑफ 0, टेल मी. x की वैल्यू 0 रखने पर, x की वैल्यू 0 रखने पर आंसर क्या आता है? टेल मी व्हाट इज p ऑफ 0. What is p of 0? P of 0 is minus 6, yes, minus 6. What is p of 1? What is p of 1? 1 लगे देखो, 2 minus 7 minus 5 plus 10, 5 minus 6. P of 1 is minus 1. P of 1 is minus 1. What is p of 2? 2 रख के देखो, 8 into 2 16, 16 minus 28 minus 12, minus 12 minus 6 minus 18 plus 20 plus 2. Now wait, कुछ डिफरेंट हुआ है. क्या हुआ है? वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हुई है. अगर इन पॉइंट्स को एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट किया जाए, मान लो एक ग्राफ का आइडिया लेने के लिए मैं अगर प्लॉट करूं, 0 पर इसकी वैल्यू है -6. ये देखो -6, तो ये पॉइंट हो गया. 1 पर इसकी वैल्यू है -1, तो ये पॉइंट हो गया. 2 पर इसकी वैल्यू है +2, तो हम यहां आ गए. अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने की कोशिश करूं तो एक बात कंफर्म्ड है, और वो क्या है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 1 और 2 के बीच में कट करेगा. देखो ना, वाई? बिकॉज p ऑफ 1 इज नेगेटिव एंड p ऑफ 2 इज पॉजिटिव. एक वैल्यू नेगेटिव है और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव है, तो उसको बीच में 0 होना ही पड़ेगा. इट्स लाइक somebody lives in Nerul East, right? And he has to go to Nerul West. Nerul East से Nerul West जाना है, ईस्ट टू वेस्ट जाना है, तो जो रेलवे ट्रैक है उसको तो क्रॉस करना ही पड़ेगा. अब ये मत कहना कि तो भाई तुम पनवेल के आगे से घूम के और कहीं से उधर जो है समंदर में कूद के चले गए, वो सब नहीं चल रहा है. लेकिन अगर हम लोग he has to cross Nerul center. Acha, I don't know about this, but one thing is for sure, but between east and west there is this railway track. तो east से west जाने पे ट्रैक तो क्रॉस करना ही पड़ेगा. This is
इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। प्रेस 3। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पर बेस्ड ये तीन चीजें। तीसरा पॉइंट वही है जो मैं लिखवा रहा था, और तीसरा पॉइंट ये है कि भाई अगर किसी भी पॉलिनोमियल के लिए पी ए इंटू पी बी नेगेटिव है, पी ए इंटू पी बी नेगेटिव होने मतलब क्या हुआ, दैट साइंस ऑफ पी ए एंड पी बी आर डिफरेंट। पी ऑफ ए पॉजिटिव है तो पी ऑफ बी नेगेटिव है, पी ऑफ ए नेगेटिव है तो पी ऑफ बी पॉजिटिव है। देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल रूट ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू 0 इन ए एंड ए टू बी। तो ये तुम्हारा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट, वो तुमने नोट कर ही लिया था, उसका एप्लीकेशन है फॉर पॉलिनोमियल्स फॉर क्वाड्रेटिक। अब मुझे बताओ कि फर्स्ट स्टेटमेंट का रीजन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से कैसे दिया जाएगा। ऑल ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशंस विद रियल कोएफिशिएंट्स मस्ट हैव एट लीस्ट वन रियल रूट। क्यों भाई, ऐसा क्यों, कैसे कह सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है बताओ। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, उसकी एक रूट तो हमेशा होगी, ऑलवेज। व्हाई? No, it is not x equal to a, x equal to minus a. No, we don't know. Fundamental theorem of algebra says that it must have roots. Real होंगी या नहीं होंगी, that we cannot say. It would get opposite values for some value, वही तो prove करना है कि ऐसा होगा. Every odd degree polynomial equation goes from minus infinity to plus infinity. Remember, or plus infinity to minus infinity. Unlike parabola, जो इन्फिनिटी से आके घूम के वापस इन्फिनिटी को चला जाता है। कोई भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल होगा ना, वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी से, भाई फॉर एग्जांपल एक क्यूबिक है, अगर तुम किसी क्यूबिक का ग्राफ प्लॉट करो, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाता है, या प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। एक नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो जीरो होगा ना, इसलिए कम से कम एक रूट तो होगी ही होगी। चलो ठीक है, ये स्टेटमेंट्स लिख लो, ये स्टेटमेंट्स लिख लो, आज इतना ही रखते हैं। चैप्टर खत्म हो गया है। कब तक बुकलेट होने वाली है भाई? स्टेट लेवल एक्सरसाइज कब तक हो जाएगी बताओ? स्टेट लेवल एक्सरसाइज संडे, मंडे, वेडनेसडे, क्या चल रहा है भाई? है 3 डेज। स्टेट लेवल एक्सरसाइज करने में 3 डेज लगेंगे ना भाई? यस आई विल सेंड इट। स्टेट लेवल एक्सरसाइज करने के लिए यू हैव 2 डेज। रिमेंबर, फ्राइडे नाइट तक तुम्हें जो है फिनिश करना है, और सैटरडे को वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेट लेवल फुल एक्सरसाइज और आर्काइव्स, और संडे नाइट तक तुम्हें पूरी बुकलेट फिनिश करके मंडे को तुम्हें डिस्कस करनी है अपनी जेई लेवल 1 और जेई आर्काइव्स। लेवल 2 अगर डिस्कस नहीं करोगे, सेपरेटली करोगे चलेगा। डेडलाइन समझ लो भाई, स्टेट लेवल एक्सरसाइज की डेडलाइन जो है वो फ्राइडे नाइट को सबमिट करना है, सैटरडे को डिस्कस करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? और जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो है वो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। फाइन? यस यस, टुमारो आई विल कम देयर टू विच सेंटर, सो वेयर एवर इट इज आई विल कम। जहां भी सेंटर विजिट होगा ना, आई विल बी देयर। आई थिंक वाशी का कुछ चेंज हुआ है यार, वाशी में आई थिंक कुछ चेंज हुआ है।